Hello and welcome to the lecture of International Business Environment. In this, we will going to have a discussion on Block 2, which is Globalization Process and Forces, Unit 7, that is Transnational Corporation. The topics to be covered are Introduction, Definition of Transnational, why firm become transnational, features of transnational. Now, yes, we had a discussion on globalization and the international investment. In that discussions, we get an idea that as the growth was there in the business, automatically the pattern of working was increased. The practices of a business become differ. The opportunity and expansions was there for the business. According to that expansions and that practices, the transnational corporations was come in. If we talk about, अगर हम transnational की बात करते हैं तो ये basically ये बताता है the operations of a business. Growth हमेशा चाहिए एक business को, और जैसे जैसे एक business grow करता है वैसे ही उसके ऑपरेशंस में डिफरेंसेस आते हैं, उसके स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है वो बदलता है. सो इन दैट केस ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस और ट्रांसनेशनल कंपनीज रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड स्टिमुलस डिमांड फॉर द ग्लोबल एफिशिएंसी, नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस एंड वर्ल्ड वाइड लर्निंग. दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द वर्किंग ऑफ होल इन्वायरमेंट. अगर बात की जाए ट्रांसनेशनल कंपनी की, तो ट्रांसनेशनल कंपनी एक कंट्री के इन्वायरमेंट को देखकर ही परफॉर्म करता है. ये बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके की डिमांड्स हैं, किस तरीके की ग्लोबल इंप्रूवमेंट है, कैसे वहां की ऑडियंस जो है रिस्पॉन्ड करती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एंड जो भी उसका एक वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे वो काम करते हैं. दे आर बेसिकली, इफ वी टॉक अबाउट multinational company, global companies or international models, the transnational is one of that type, because these are all the types of working or types of operation at a very different level in the international market. जब हम international trades की बात करते हैं तो international trade में ये सब different operations और different level पर perform कर रहे होते हैं. जिस लेवल में से एक लेवल ट्रांसनेशनल कंपनीज का भी होता है. ट्रांसनेशनल कंपनीज आर, यस, दे आर बेसिकली दैट ऑफ कि अगर आप एक कंपनी में एंटर हो रहे हो या एक कंट्री में आप परफॉर्म करने जा रहे हो, सो आप उस कंट्री के नेचर के पर्सपेक्टिव से काम करेंगे. तो दैट शोज दैट देयर आर the transnational companies are those type of company which never considered the one country as a host or a home country. So a product is designed to be a globally competitive and differentiated and adapted by the local subsidiaries. तो जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज के, कि वो ग्लोबली किस तरह से compete करेंगे और कैसे हेल्प करेंगे टू वर्क इन दी इंटरनेशनल मार्केट. When it comes to have a definition of transnational companies, so the very first definition is the firm that owns and control the production facility in two or more countries. That means एक प्रोडक्शंस जो हैं वो एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, जो फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एक से ज्यादा इंडस्ट्री कंट्रीज के अंदर हैं. दैट मीन्स दैट फर्म इज हैविंग ओन एंड कंट्रोल. नाउ बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में जाके परफॉर्म करती हैं. दे मे कॉल्ड एज एमएनसी, दे मे कॉल्ड एज इंटरनेशनल कंपनीज, दे मे कॉल्ड एज अ ग्लोबल कंपनी. नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टीएनसी. टीएनसी इज व्हाट, जब एक कंपनी एक कंट्री के अंदर या मल्टीपल कंट्रीज में जाके अपना खुद का और बिजनेस स्टार्ट करती है और उनका पूरा कंट्रोल होता है उस प्रोडक्शन और उस फैसिलिटी के अंदर. So that comes into transnational companies. And yes, the enterprise that undertake FDI and control income, gathering assets in more than one country, जो कि different assets को gather करती है एक से ज्यादा countries से, और yes, जो कि एक FDI की contribution देती है एक से ज्यादा countries के अंदर, that comes into TNCs.
produces goods and services outside its country by origin and engage in the international production. As in the previous we discussed कि TNCs में किसी भी तरह की host countries इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है. Again, the home country was yes their origin उसका होता है, but बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं होती. yes, एक ओरिजिन डिफाइन करने के लिए देयर इज अ होम कंट्री, पर हर होस्ट कंट्री के अंदर टीएनसी जो है अलग तरीके से परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर होस्ट कंट्री. उसकी जो कंट्रोलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, उसकी जो ऑपरेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सब उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री के हिसाब से होती है. नाउ these cooperation together with the host government are reorganizing the world economic structure. That is what we were discussing कि ये हर होस्ट कंट्री के हिसाब से ही एक कॉर्पोरेशन के साथ ही काम करती है एंड दे बेसिकली ब्रिंग्स आउट अ बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर. ये पॉलिटिकल पावर का बैलेंस लेके आती हैं एंड यस दे ब्रिंग आउट अ बैलेंस in the international trade and investment accords also. That means जो investment होती है वो उसी के accordingly होती है and they have a intergovernmental trade. So that comes into the certain points which clear the idea कि कैसे एक transnational company जो है वो different होती है global company से different होती है other countries like international or multinational companies. So now this is what the slide is basically explaining that what exactly is the major difference between all these four, because these are all the levels of entering into that particular international businesses. जब एक international trade के अंदर companies आती हैं तो different operation patterns के हिसाब से वो इस तरीके की firms में divide हो जाती है. तो पहली है global company. ग्लोबल कंपनी हैव इन्वेस्टेड एंड आर प्रेजेंट इन मेनी कंट्रीज. वो एक ग्लोबल मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रही होती हैं. दे कंसीडर्ड एज द होल वर्ल्ड एज इन अ वन मार्केट, सो दैट्स कम इनटू ग्लोबल कंपनीज. Whereas multinational companies have their investment in the other countries but does not have a coordination product offering in each country. So उनकी वर्किंग जरूर होती है एक दूसरी कंट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट जरूर वो दूसरी कंट्रीज में करते हैं, बट जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री अलग हो सकती है. और यस, तो जो मेथोडोलॉजीज है वो मेनली उनकी होम कंट्री से कंट्रोल्ड होती है. वहीं पर इंटरनेशनल कंपनीज आर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. They have no investment outside of the home country. That's very true because एक इंटरनेशनल कंपनीज वो कंपनीज कहलाती हैं जो कि अपनी नेशन से हटकर जब बाहर एक्सपोर्ट करती हैं या बाहर के माल को इंपोर्ट करती है, दैट्स कम इनटू इंटरनेशनल कंपनीज. उनका कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होता किसी और कंट्री के अंदर, क्योंकि वो मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू ही अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को सक्सेसफुली करती हैं. एंड यस, दे एंटर्ड इनटू द प्रॉफिट मार्जिन. सो दैट्स कम इनटू इंटरनेशनल कंपनीज. Whereas now these three definitions gives you the idea कि कैसे TNC जो है different है global companies, multinational company और international company से. TNC basically have a central cooperative facility. इनकी एक central facilities हैं और खुद का एक decision making होता है, research and development, marketing power. They have all these at in a very individual perspective in the foreign market. सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी एक कंपनी इंडिया में आके परफॉर्म करती है तो वो अपनी सारी सेंट्रल पावर्स यहाँ से कोऑर्डिनेट करें. दैट मींस इन इंडिया दे हैव देयर ओन डिसीजंस मेकिंग, दे हैव देयर ओन मार्केटिंग पावर, दे हैव देयर ओन फैसिलिटीज, दे हैव देयर ओन प्रोडक्शंस. सो दैट्स कम्स इनटू द ट्रांसनेशनल कंपनी. नाउ व्हाई फर्म बिकम अ ट्रांसनेशनल? क्यों एक फर्म ट्रांसनेशनल बनती है? The very first is to protect themselves. That is the one of another source. जब एक international business में कंपनी एंटर करती है तो in that case उसके लिए सबसे पहला मोटिव ये होता है कि कैसे वो मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर वो कैसे अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगी. दैट मीन्स वो किस तरह से एक अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर. तो उसके लिए टीएनसी हमेशा हेल्प करता है और टीएनसी इज वन सोर्स थ्रू विच दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ. Another is to trap them the growth of the world market. Yes, world market में अपने आप
को प्रूव करना, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, दैट्स ऑल कम्स इनटू द वन ऑफ द मोटिव ऑफ दैट फर्म टू बिकम अ ट्रांसनेशनल। रिस्पॉन्सेज टू इंक्रीज द फॉरेन कंपटीशन को और ज्यादा इंप्रूव करना और बेटर तरीके से परफॉर्म करवाना, दैट्स कम्स इनटू द ट्रांसनेशनल पार्ट। टू रिड्यूस द कॉस्ट, yes, max with the good production, with good value additions, with the efficiencies and effectiveness, एक organization जो है वो अपने cost को reduce कर सकती है। So transnational is a one source जहां पर वो और betterly perform करते हैं। Then another is to reduce the tariffs। transnational से एक जो tariff और जो taxes होते हैं they definitely come down because वो वहां पर एक full fledged organization की तरह आ रही होती हैं rather than the importer and exporter of that particular country, so automatically उनके tariffs minimize हो जाते हैं। Then to take the advantages of technological expertise, yes, technology transfer के अंदर transnational एक बहुत important role play करता है because with the help of transnational एक particular जो कंपनी होती है वो डिफरेंट नेशन की टेक्नोलॉजीज डिफरेंट जगह यूज कर सकती है। सो इन दैट केस वो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सो दीज आर दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से फर्म एक ट्रांसनेशनल कंपनी बनती है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टीएनसी? इफ वी डिस्कस अबाउट द टीएनसी का सबसे पहला फीचर होता है कि इट जनरेट्स द वैल्यू ऑफ द टोटल सेल्स बिकॉज दे कंसीडर्ड द सेल्स इन ओवरऑल वर्ल्ड कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने कितनी सेल्स जनरेट की। सो उसका एक सबसे बड़ा फीचर है कि टीएनसी अपने आप में एक बहुत बड़ी लार्ज साइज पर परफॉर्म करती है। देन टीएनसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन देयर फॉरेन सेल्स। यस, दिस इज द वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि होल वर्ल्ड में उससे जिस तरह की सेल्स की हैं, जितना प्रॉफिट अर्न किया है, वो उसी हिसाब से अपने वैल्यूज को डिफाइन करती है, अपने मार्केट शेयर्स को डिफाइन करती है। सो दैट्स कम्स इनटू इट्स मेनली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन सेल्स। TNCs are multi-product enterprises which are having a different products in the different market because जिस भी country के अंदर वो enter कर रहे हैं उनकी product offering differ हो सकती हैं। So that's automatically shows कि ये multiple products के अंदर होती हैं और वो भी multiple techniques के साथ। So that's comes into features. Another features are strength in their command of technologies and innovation. As we discuss कि technology को transfer करने में एक बहुत important source होता है ये। So automatically it strengthen that, वो और ज़्यादा innovation practices लेकर आता है different countries में। क्योंकि एक country अगर technologically बहुत advanced नहीं है तो with the help of TNC that technology can have a improved technology from the other countries. So एक strengthening आती है, एक कंपनी की खुद की तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, बट येस द अदर कंट्रीज इकोनॉमी एंड कंट्रीज टेक्नोलॉजी डू इम्प्रूव। टू एफिलिएट ऑफ द टीएनसीज आर रिस्पॉन्सिव टू द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फोर्सेस। इट्स रिएक्ट ऑन द नंबर ऑफ फोर्सेस बिकॉज आप जिस भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में एंटर हो रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री के एनवायरमेंट को ही स्टडी करके उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। So in that case, different countries and you were understanding the different multiple environments. It basically helps to draw the n numbers of or a common pool of resources. Yes, the trademarks, the assets, the patent, these kind of things are very much similar and it's a pool of all these resources. So this is what basically comes into the features of TNC. Now it's highlights of TNC. That means all the major or important points which is considered in TNC. The very first is the commanding of technology and innovation कि हाँ that is the very first point कि से technology improve होती है और innovation improve होती है एक particular country की भी और उस particular company की भी जो as a TNC उस particular country के अंदर enter हो रही है। ये assets affiliate n number of assets इसके पास होते हैं जिसमें वो perform कर सकती है different assets को different सिनेरियो से वो यूज कर सकते हैं। दे हैव टू कंसीडर द एनवायरमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्रीज एंड यस दे हैव अ मार्केट पावर ऑफ टीएनसी। इफ वी टॉक अबाउट मार्केट पावर, सो यस एन नंबर्स ऑफ और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक साथ परफॉर्म करने में आपके पास बहुत सारा मार्केट पावर होता है। सो दैट विल इंक्रीज और शोज द मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज और एक्सपेंशन बहुत होते हैं। सो दैट विल लीड्स टू द मार्केट पावर्स ऑफ टीएनसी।
इट्स इंटर फर्म ट्रेड। यस, अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल एक टीएनसी जो है उसकी एक बिजनेस इंडिया के अंदर है, एक XYZ कंट्री के अंदर है, सो दे आर हैविंग एन इंटर फर्म ट्रेड। वो एक दूसरे के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल बिजनेसेस में होते हैं। सो दैट वाज कम इनटू इंटर फर्म ट्रेड्स। Then another was comes into the one thing that कि ये चीज लीड करती है for having a better practices. So this was comes into the today's session. So we were winding up here. So thank you so much. IGNOU MOOCs.